Hello children, this is Jumadin sir and today I am going to take your English class and I will teach you chapter 3 from your English literature book and the name of the chapter is The Upside Down Mice. Okay, without wasting any time, we will start the chapter. Once upon a time, there lived an old man whose name was Laban. All his life, he had remained a quiet and peaceful person. He was very poor yet happy. तो ये कह रहा है एक समय की बात है, वहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसका नाम लबान था। अपने पूरे जीवन वो एक निर्वादी और शांतिपूर्ण इंसान बने रहे। वो बहुत गरीब था पर फिर भी खुश रहता था। When Laban found that there were mice in his house, he hardly bothered. They kept on playing all around and finally there came a time when he could stand it no longer. तो जिस घर में लबान रहता था उस घर में बहुत सारे चूहे रहते थे, लेकिन जब लबान को पता चला कि वहाँ चूहे रहते हैं, उसने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पे ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। लेकिन चूहे घर में चारों तरफ खेलते रहते और एक वक्त आया जब लबान को लगा कि अब बस बहुत हो गया। It is too much, he said. This really is going a bit too far. He walked out of the house, down and the road to a shop where he bought some mousetraps, a piece of cheese and some glue. लबान ने कहा, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, ये वास्तव में मेरे पहुंच से दूर हो गया है। वो घर के पास सड़क के नीचे एक दुकान पर चले गए और वहाँ से कुछ चूहेदानी, पनीर का एक टुकड़ा और कुछ गोंद खरीद कर लाए। When he got home, he put the glue on the underneath of the mousetrap and stuck them to the ceiling. Then he baited them carefully with piece of cheese and set them to go off. Okay. जब वो घर आए तो उसने चूहेदानी के नीचे गोंद लगा दिया और चूहेदानी को छत पर चिपका दिया। फिर उसने पनीर के टुकड़े को सावधानी से चूहेदानी में फंसाया और उसे छोड़ दिया। At night, when the mice came out of their holes and saw the mousetrap on the ceiling, they thought it is a strange joke. They walked around on the floor, nudging each other and pointing up with their front paws and roaring with laughter. रात को जब चूहे अपने बिल से बाहर आए और छत पे चूहेदानी को देखा तो चूहों को लगा कि यह कोई अजीबोगरीब मजाक है। वे फर्श पर इधर उधर टहलते हुए एक दूसरों को नोचते हुए और अपने सामने के पंजों से ऊपर की ओर इशारा करते और बहुत ज़ोर से गरजते हुए हंसते। After all, it was pretty silly mousetrap on the ceiling. और देखा जाए तो वो जो छत पे चूहेदानी लगाने का जो आइडिया था वो एक ऐसा लग रहा है कि एक बेवकूफ़ी भरा तरीका था। ओके। When Laban came down the next morning and saw that
There was no mouse caught in the mousetrap. He smiled out, said nothing. अगली सुबह जब लबान नीचे आते हैं और देखते हैं कि चूहेदानी में कोई चूहा नहीं है, वे हंसते हैं और कुछ नहीं बोलते। He took a chair and put glue on the bottom of its leg and stuck it upside down on the ceiling near the mousetrap. He did the same with the table, the television set and lamp. He took everything that was on the floor and stuck them upside down on the ceiling. He even put a little carpet up there. लबान एक कुर्सी लेते हैं और उस कुर्सी के पाँव के निचले हिस्से में गोंद लगाते हैं और उसे छत से चूहेदानी के पास चिपका देते हैं। वह वैसे ही टेबल के साथ, टीवी के साथ और लैंप के साथ करते हैं। लबान ने अपने घर के फर्श पे जितने भी चीज़ें थी उन सब को उल्टा अपने छत से चिपका देते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा चटाई भी वो चिपका देते हैं। अब क्या होता है आगे देखते हैं। The next night when the mice came out of their holes, they were still joking and laughing about what they had seen the night before. But now when they looked up at the ceiling, they stopped laughing suddenly. God gracious me, cried one. Look up there. There's the floor. अगली रात जब चूहे अपने बिल से बाहर आए तो वो बीते रात के बारे में बात करके मजाक उड़ा रहे हैं और उस पर हंस भी रहे हैं। लेकिन अब जब चूहों ने छत पे की तरफ देखा तो उन्होंने अचानक से हंसना बंद कर दिया और एक चिल्लाया, भगवान मुझ पर कृपा करें। ऊपर देखो, मतलब अपने जो उनके साथ चूहे हैं उनको कह रहा है, ऊपर देखो फर्श वहाँ है। Heavenly above, shouted another. We must be standing on the ceiling. एक अन्य चूहे ने चिल्लाया, ऊपर वाले हम लोगों को छत पे खड़ा होना चाहिए। अपने साथियों से कहता है हम लोगों को छत पे खड़ा होना चाहिए। All the blood is going to my head, said another. दूसरे ने कहा, सब रक्त मेरे सर पे जा रहे हैं। मतलब कि मेरे दिमाग में जब कोई उल्टा खड़ा होगा तो क्या होता है, जितने भी खून शरीर में है वो सब सर के तरफ आने लगते हैं। This is terrible, said a very old mouse with long whiskers. एक लंबे मूंछ वाले पुराने चूहे ने कहा, ये भयानक है। This is really terrible. This is really terrible. We must do something about it at once. ये वास्तव में भयानक है। हम सबको एक बार इसके लिए कुछ करना चाहिए। I shall faint if I have to stand on my head any longer, shouted a young mouse. एक छोटे चूहे ने कहा, मैं बेहोश हो सकता हूँ अगर मुझे और कुछ देर सर के बल खड़ा होना पड़ा। अब दूसरा कहता है मी टू, और एक ने कहा मैं भी। नेक्स्ट पेज में चलेंगे। सेव अस, डू समथिंग समबडी क्विकली। कोई कहता है हमें बचा लो,
कोई तो कुछ जल्दी से करो। They were getting upset now. They were getting upset now. I have what we will do, said the very old mouse. We will all stand on our heads. Then, anyway, we will be the right side up. Obediently, they all stood on their head, and after a long time, one by one, they fanned from a rush of blood to their brain. एक पुराने चूहे ने कहा, मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। हम सभी सर के बल खड़ा हो जाएंगे और जैसे भी हम सीधे हो जाएंगे। उसके बाद आज्ञाकारी चूहों ने उसकी बात मानी और वे सब अपने सर के बल खड़े हो गए। और कुछ देर बाद क्या होता है कि वो लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं, एक एक करके। क्यों बेहोश होने लगते हैं? क्योंकि उनके भेजे में रक्त का जो दौरान से सारा खून उनके भेजे में चला जाता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। When Laban came down the next morning, the floor was littered with mice. Quickly he gathered them up and flung them all in a basket. अगली सुबह जब लबान नीचे आते हैं तो देखते हैं कि फर्श चूहों से भरा पड़ा था। फर्श जो है, उनका जो घर का फर्श है, वो चूहों से भरा पड़ा है। तो क्या करते हैं, जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और एक टोकरी में रख दिया। तो इस तरह से लबान का जो परेशानी था चूहों से, वो उनका परेशानी खत्म होता है। मोरल: whenever the world seems to be terrible upside down, make sure you keep your feet firmly on the ground. अब ये कहानी हमें क्या सिखा रही है कि अगर हमारे जीवन में कभी भी ऐसा कोई समय आए जो कि हमारी दुनिया को उलट पुलट करके रख दे, तो हमें उस वक्त ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और हमें चाहिए कि हम अपनी पैरों पे मजबूती से ज़मीन पे खड़े रहें। मजबूत से रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके कारण हमें हानि पहुंच जाए, तभी ना जो भी परिस्थितियां आएगी उसको हम लोग फेस करेंगे। ठीक है, तो परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, परेशानियों से लड़ना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।